The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's a fault. Mrs. Jones, I think the geography sector was graded a little too cook. Those things happen sometimes. I have solved it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern to her progress is quite satisfactory, and he patted Margie's head again. Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tummy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. So she said to Tommy, "Why would anyone write about school?" कार्य समाप्त कर चुकने तथा मर्जी का सिर थपथपाने के बाद निरीक्षक मुस्कुराया। उसने निरीक्षक ने उसकी मर्जी की माताजी से कहा, "श्रीमती जोन्स, यह इस छोटी बच्ची का दोष नहीं है। मेरे विचार से भूगोल का क्षेत्र थोड़ा जल्दी व्यवस्थित कर दिया गया था। कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने इसे 10 वर्ष के बच्चे के स्तर तक धीमा कर दिया है। वस्तुतः कुल मिलाकर उसकी प्रगति का ढंग बिल्कुल संतोषजनक है।" और उसने मार्जी का सिर पुनः थपथपाया। मार्जी हताश थी। उसे आशा थी कि वे अध्यापक को पूरी तरह दूर ले जाएंगे। वे एक बार टॉमी के अध्यापक को लगभग 1 माह के लिए इसलिए दूर ले गए थे क्योंकि इतिहास का क्षेत्र पूर्णतः खाली हो चुका था। इसलिए उसने टॉमी से कहा, "विद्यालय के विषय में कोई क्यों लिखेगा?" Tommy looked at her with very superior eyes. "Because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago," he added loftily, pronouncing the word carefully. "Centuries ago." Margie was hurt. "Well, I do not know what kind of school they had all that time ago." She read the book over his shoulder for a while, then said
they had a teacher. Sure that they had a teacher, but it was not a regular teacher, it was a man. A man, how could a man be a teacher? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. टॉमी ने उस पर अति श्रेष्ठता भरी दृष्टि डाली, क्योंकि यह हमारी तरह का विद्यालय नहीं है। मूर्ख, यह उस प्रकार का पुराना विद्यालय है जो कि सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे। शब्दों को सावधानी पूर्वक उच्चरित करते हुए, श्रेष्ठता दर्शाते हुए उसने आगे जोड़ा, शताब्दियों पहले। मार्जी के दिल को ठेस पहुंची। ठीक है, मुझे नहीं पता उस समय पहले किस प्रकार के विद्यालय हुआ करते थे। उसने कुछ समय तक उसके टॉमी के कंधे के ऊपर से पढ़ा और कहा, फिर भी उनका अध्यापक होता था। निश्चित ही उनका अध्यापक होता था, किंतु वह नियमित अध्यापक नहीं होता था। वह तो व्यक्ति हुआ करता था। कोई व्यक्ति अध्यापक कैसे हो सकता है? अच्छा, वह तो लड़के और लड़कियों को केवल बातें बताया करता था तथा उन्हें गृह कार्य दिया करता था और उनसे प्रश्न पूछा करता था। A man is not smart enough. Sure, he is my father known as much as my teacher. He knows almost as such, I bet. Marji was not prepared to dispute that. She said, I would not want a strange man in my house to teach me. Tommy screamed with, teacher, you do not know much, Marji. The teacher did not live in the house. They had a special building and all the kids went there and all the kids learned the same thing. Sure, if they were the same age. कोई आदमी इतना बुद्धिमान नहीं होता, निश्चित रूप से होता है। मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना मेरे अध्यापक। मुझे पक्का विश्वास है उन्हें लगभग उतना ही आता है। मार्जी बहस करने को तैयार नहीं थी। उसने कहा, मैं नहीं चाहूँगी कि कोई अजनबी व्यक्ति मेरे घर मुझे पढ़ाने आए। टॉमी हंसी के मारे चीख पड़ा, मुझे ज़्यादा नहीं पता। मार्जी अध्यापक मकान में नहीं रहते थे, विशेष प्रकार के भवन हुआ करते थे और सारे बच्चे वहीं जाया करते थे। और सारे बच्चे क्या एक ही चीज़ पढ़ा करते थे? निश्चित ही यदि वे एक ही उम्र के होते थे तो। बट माई मदर सेज ए टीचर has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. Just the same, they did not do it that way then. If you do not like it, you do not have to read the book.
I did not say I did not like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. They were not even half finished when Margie's mother called Margie school. Margie looked up, not at Mama. Now, said Mrs. Jones, and it's probably time for Tummy too. Margie said to Tummy, can I read the book some more with you after school? किंतु मेरी माताजी कहती हैं कि अध्यापक को अपने पढ़ाने वाले हर लड़के और लड़की के मस्तिष्क के अनुसार सामंजस्य बिठाना पड़ता है और यह कि हर बच्चे को अलग प्रकार से पढ़ाना होता है। इसी प्रकार वे इसे तब इस प्रकार नहीं किया करते थे। यदि तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम्हें पुस्तक नहीं पढ़नी है। मैंने यह नहीं कहा कि यह मुझे पसंद नहीं है, मार्जी ने तीव्रता से कहा। वह उन विचित्र विद्यालयों के विषय में पढ़ना चाहती थी। उन्होंने आधी किताब भी समाप्त नहीं की थी कि मार्जी की माताजी ने पुकारा, मार्जी स्कूल। मार्जी ने ऊपर देखा, अभी नहीं माँ। अब श्रीमती जोन्स ने कहा, और शायद टॉमी का भी समय हो गया है। मार्जी ने टॉमी से कहा, क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ थोड़ी और किताब पढ़ सकती हूँ? Maybe, he said nonchalantly. He walked away, wasting the dusty old book tucked beneath his arm. Margie went into the schoolroom. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on hand and waiting for her. It was always on at the same time every day, except Saturday and Sunday, because her mother said little girls learned better if they learned at regular hours. The screen was light up and it said, "Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. Please insert yesterday's homework in the proper slot." सभ्यता, उसने उदासीनता से कहा। वह सीटी बजाते हुए अपनी बाह में धूल भरी पुरानी पुस्तक को दबाकर चला गया। मार्जी विद्यालय कक्ष में गई। यह उसके शयन कक्ष के ठीक बराबर में था और यांत्रिक अध्यापक चल रहा था तथा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। शनिवार व रविवार के अतिरिक्त यह हमेशा प्रतिदिन इसी समय खुला रहता था, क्योंकि उसकी माताजी कहती थी कि लड़कियां यदि नियमित समय पर पढ़ें तो वे बेहतर सीखती हैं।
स्क्रीन चमक रही थी और उसने कहा, आज अंकगणित का पाठ उचित भिन्नों के जोड़ पर है। कृपया कल के गृह कार्य को उचित खांचे में डालें। मर्जी did so with a sigh. She was thinking about the old schools they had when her grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. And the teachers were people. The mechanical teacher was flashing on the screen when we added fraction, and Marji was thinking about how the kids must have loved it in the older days. She was thinking about the fun they had. मार्जी ने ऐसा आह के साथ किया कि वह उसने पुराने विद्यालयों के विषय में सोच रही थी जो तब हुआ करते थे जब उसके दादाजी के दादाजी छोटे बालक थे। पूरे पड़ोस के सारे बच्चे आया करते थे। विद्यालय प्रांगण में हंसते चिल्लाते थे। विद्यालय कक्ष में साथ साथ बैठते थे और दिन के अंत में साथ साथ घर चलते जाते थे। वे एक जैसे बातें सीखते थे, इसलिए वे गृह कार्य में एक दूसरे की मदद कर सकते थे और इसके विषय में बात कर सकते थे और अध्यापक व्यक्ति हुआ करते थे। यांत्रिक अध्यापक स्क्रीन पर चमक रहा था। जब हम भिन्न तथा मार्जी सोच रही थी कि पुराने दिनों में बच्चों को कैसा लगता होगा। वह सोच रही थी कि उन्हें कितना मजा आता होगा। यह कक्षा 9 का पहला लेसन जो इस साल सब्जेक्ट में बदलाव हुआ है समाप्त हुआ। अगले लेसन के बारे में फिर आपको जो है बताया जाएगा।